हेलो एवरीवन, दिस इज सी प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशंस। In this video, we are going to discuss the RTP that has been released by the institute for the upcoming January 26 examinations. In this video, I'm going to discuss the objective parts relating to the direct tax laws and international taxation, that is our paper 4. I have already discussed the judicial update and the statutory update, that is, the additional notifications or circulars or the additional case laws that are relevant specifically for the January 26 attempt. So, you can refer to those videos. The links are in the description box below. In this video, we are going to discuss about the objective questions given in the revision test paper. So, let us start. Now, case scenario 1. Mr. Rohan Mehta is a property dealer and is also engaged in the business of constructing apartments. A search under Section 132 of the Act in the business premise of Mr. Rohan was conducted on 10th of December 2024. The last of the authorizations were executed on 18th of December 2024. The following facts were discovered during the search proceedings. Cryptocurrency of 50 lakhs was acquired in financial year 21-22 and jewelry worth 30 lakhs was acquired during 23-24. ठीक है, तो सर्च हुई है. Now, as I have already told you, like in all of my videos, lectures, and in all the revision videos, the Finance Act number 2, 2024 has brought in various amendments. And वहां पर again जो search provisions हैं उनमें फिर से change लाया गया. So earlier the search provisions were different provisions, block assessment का concept हुआ करता था. Then बीच में what did they do? They merged the reassessment and the search proceedings. तो अगर search initiate हुआ है तो भी आपका 147 में ही assessment होता था. Now again, if the search is initiated on or after 1st of September 2024, again during this year, तो अब वहां पर अलग से असेसमेंट होगा, वो 147 का पार्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है, सो नाउ अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि सर्च की डेट क्या है. ठीक है, कि वो 147 के प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड होगा या फिर वो हमारा अलग से ब्लॉक असेसमेंट्स के प्रोविजंस में इंक्लूड होगा. सो इन दिस केस इट इज कंडक्टेड ऑन 10th ऑफ डिसम्बर, तो हमारा 147 के प्रोसीडिंग्स नहीं लगेंगे, ब्लॉक असेसमेंट के प्रोसीडिंग्स लगाए जाएंगे. ठीक है ना, उसकी सर्च प्रोसीडिंग्स में उसके पास क्रिप्टो और ज्वेलरी पाई गई. आउट ऑफ दिस रोहन कुड एक्सप्लेन सोर्स ऑफ ओनली 20 lakhs इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी एंड ज्वेलरी वर्थ 10 lakhs जो कि एनईएफटी से खरीदा था. तो क्रिप्टो का 20 एक्सप्लेन कर पाया वो, और ज्वेलरी के 30 में से 10 एक्सप्लेन कर पाया वो, बाकी का एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नाउ दैट मीन्स आइदर ही वाज अनेबल टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन or the explanation given to him was not found satisfactory by the assessing officer. Further, books of accounts revealed an unexplained expenditure of 15 lakhs incurred during the financial year 22-23 towards foreign travel of family members. No proper source was explained. Loose papers indicated receipts of 40 lakhs in cash for sale of flats during financial year 2021. The amount was not recorded in the books of accounts. ठीक है, तो ये सारी उसकी unexplained या unrecorded income or expenditures पता चले. It has come to notice of to the assessing officer that the assessment of 23-24 was pending under 143(3) on the date of initiation of the search. तो already assessment 143(3 मतलब scrutiny assessment हमारा pending था. The assessing officer issued a notice under 158BC मतलब हमारा search assessment for furnishing a return within 60 days. However, Mr. Rohan Mehta furnished the return after expiry of 60 days. The assessing officer, after considering evidence, determined total income of 1.05 crores and proceeded to levy tax at the rate applicable along with surcharge and cess. He also levied interest at the rate of 2% on the on 2% of tax on undisclosed income for every month or part of the month after the expiry of 60 days and ending on the date of completion of assessment under 158BC. ठीक है, तो उसने टैक्स भी लगाया और उसने अलग से इंटरेस्ट लगाया अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर एट द रेट ऑफ 2%. ठीक है, on 12th of March, Mr. Jeevan and Mr. Shivam purchased an apartment from Mr. Rohan Mehta for 70 lakhs, 35 lakh each. The stamp duty value of the apartment is 48 lakhs. The consideration amount includes 2 lakhs towards car parking and 50,000 towards maintenance fees. ठीक है, on 20th of March, ABC Private Limited bought back 50,000 shares
including 500 shares from Mr. Jeevan for 1250 per share. Mr. Jeevan acquired these shares for 200 rupees per share in 2018. Again, now buyback maybe there is an amendment. If there is any buyback on or after 1st of October 2024, so ऐसे dates वाले amendments काफी सारे हैं इस साल में आपको कि इस तारीख के पहले हुआ तो ये लगेगा, उस तारीख के बाद हुआ तो ये लगेगा. ऐसे केसेस में क्वेश्चन में डेट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. सो 1 अक्टूबर 2024 के बाद का है बायबैक, तो ये टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में. पूरा का पूरा कंसिडरेशन एज डिविडेंड एंड कॉस्ट विल बी अलाउड एज अ कैपिटल लॉस. चलो उस पर आते हैं, बाद में क्वेश्चन क्या क्या है वो पूछते हैं. तो स्टोरी तो समझ आ गई, अब समझते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है. वेदर एनी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ अपार्टमेंट बाय मिस्टर जीवन एंड मिस्टर शिवम. तो मिस्टर जीवन और मिस्टर शिवम ने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है, क्या उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. सो टैक्स डिडक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, मतलब बायर के ऊपर अप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 194IA. दैट इज प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू 50 लाख से ऊपर है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, विच एवर इज हायर, देन आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 194IA. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कंसिडरेशन, consideration specifically includes all the other car parking and maintenance and everything. So basically in this given case, our consideration payable is exceeding 50 lakhs. Therefore in this case you will have to deduct tax, like the buyer will have to deduct tax at the rate of 1% in the given case. Okay, so consideration payable including car parking and maintenance fees by Mr. Jeevan and Mr. Shivam. So TDS करना पड़ेगा. What will be considered. अच्छा, one more thing, इसमें एक चीज और जो अमेंड हुई थी कि आप अगर जॉइंट बायर हो तो भी आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देखा जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं देखना है कि जॉइंट परचेज है तो इंडिविजुअली तो 50 लाख एक्सीड नहीं हो रहा है. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड 50 लाख आपको टीडीएस जो है उसके ऊपर करना पड़ेगा, है ना. what will be considered as block period for the purpose of 158B. now block period कब से माना जाएगा, तो देखो सबसे पहले तो देखो सर्च कब कंडक्ट हो रही है. तो सर्च हमारी इनिशिएट हुई है 18 दिसंबर. 18 दिसंबर वाला जो साल है वो तो कवर होगा ही सही. सो अप्रैल 24 से 18 दिसंबर 24, इस ये तो आपके ब्लॉक पीरियड में आएगा ही. और इससे पिछले हमारे जो ईयर्स हैं, तो कौन से ईयर्स लेंगे हम, 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. सो असेसमेंट ईयर 24-25 जो है वहां तक आपका ब्लॉक पीरियड में कवर होगा. सो असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब कौन सा हो गया हमारा, फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24. सो जिस साल सर्च कंडक्ट हुई वो टिल द डेट ऑफ सर्च तो आएगा ही, उसके पिछले 6 साल भी आपके ब्लॉक पीरियड में इंक्लूड होंगे. ठीक है, तो ये 6 इयर्स प्लस आपका पार्ट ईयर जो सर्च वाला ईयर है उतना, है ना. विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक असेसमेंट मिस्टर रोहन मेहता रिसीव्ड द फॉलोइंग डिफरेंट ओपिनियंस. क्या क्या ओपिनियन मिले उसको. पेंडिंग असेसमेंट जो है वो अबेट हो जाएगा, मतलब वो अभी के लिए होल्ड पे चला जाएगा. पेंडिंग असेसमेंट अंडर 143 शैल कंटिन्यू एंड बी कंप्लीटेड अंडर दैट सेक्शन ओनली. मतलब इधर सर्च की प्रोसीडिंग्स अलग से चलेगी, इधर 143 अलग से चलेगा और पूरा असेसमेंट ऑर्डर निकाला जाएगा. टोटल इनकम ऑफ 1.05 crore shall be taxable at normal slab rates. Total income shall be taxable at 60% plus surcharge cess क्योंकि unexplained है. पेनल्टी शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम. तो अब इसमें आपका पॉइंट इज कि कौन सा ओपिनियन सही है. तो सी, whenever there is a search assessment, जो आपके existing assessment है, जो ongoing assessment है, वो अबेट हो जाएगा at that point of time. ठीक है, तो वो बात बराबर है. तो फर्स्ट वाले पॉइंट में ये सही है आपका. और आपका जो 1.05 करोड़ है वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल नहीं होगा, वो 60% पे टैक्सेबल होगा. वाई, बिकॉज इट इज एन अनडिस्क्लोज्ड इनकम. सो 60% प्लस सरचार्ज एंड सेस जो हमारा हाईएस्ट रेट होता है बिकॉज ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, दैट विल बी एप्लीकेबल. सो 1 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. 270A की पेनल्टी इस पे नहीं लगेगी. नाउ वेदर द इंटरेस्ट levied by assessing officer in respect of undisclosed income assessed for the block period is correct. क्या उसने जो 60 days वाला एक्सपायरी के बाद का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 2%, is that calculated correct? So no, the rate of interest is not 2%, it is 1.5%. So interest at the rate 1.5% of tax on undisclosed income
can be levied for every month or part of month after the expiry of 60 days and ending on the date of completion of the assessment under 158BC. So interest can be levied at the rate of 1.5 and not 2%. ठीक है ना. बाय बैक में क्या होगा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिकॉज वो 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद का बाय बैक है, तो आपके जो शेयर होल्डर है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा एज ए डिविडेंड. सो कंसिडरेशन नाउ, हाउ डू यू कैलकुलेट द इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. आपका जो कंसिडरेशन है, कितना कंसिडरेशन मिला है उसको, 50,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 500 शेयर्स. तो जीवन के 500 शेयर्स के 1250, तो 6,25,000 उसकी डिविडेंड इनकम मानी जाएगी अंडर 222F. 222F. और उसने जो परचेज किया था वो 200 रुपए में परचेज किया था, तो ये जो उसका 1 लाख आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इज कैपिटल लॉस. चलो, सो ऑप्शन विल बी आर बी ऑप्शन की लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि वो पीरियड ऑफ होल्डिंग के अकॉर्डिंग इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. 1 लाख जो है वो उसका कैपिटल लॉस हो जाएगा एंड डीम डिविडेंड 222F में अराइज होगा पूरा का पूरा कंसिडरेशन, है ना. सो ये एक अगेन इम्प्लीकेशन रहेगा शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनी के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. चलो, केस सिनेरियो 2. मिस्टर अमित वर्मा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिसाइड्स इन दुबई. इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, है ना. थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा होगा कहाँ क्या हो सकता है क्वेश्चन में, राइट. इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज कंसल्टेंसी प्रोफेशन ही कीप्स विजिटिंग इंडिया फ्रीक्वेंटली. ठीक है जी. ही विजिट्स इंडिया फॉर 90, 65, 70 एंड 80 डेज ड्यूरिंग द 4 फाइनेंशियल ईयर्स. तो पिछले 4 सालों में 365 हो रहे हैं क्या, वो तो हम टोटल कर ही लेते हैं एक बार, नहीं हुआ, ठीक है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही स्टेड इन इंडिया फॉर 135 डेज. Okay. During his stay in India, he earned income of 9 lakh from his consultancy provision, dividend income of 2,15,000 and 18 lakh as rental from a property in Mumbai. He earned 23,50,000 as consultancy income from Dubai, but not liable to tax in Dubai. He spent 2,400 to earn the dividend income and 2.5 lakh for consultancy profession in India. ठीक है. For convenient travel in India, he purchased a car on 15th of May 2024 worth 11 lakhs. तो यहाँ पर आपको TCS provisions ध्यान में रखने हैं. He also purchased equity shares of Reliance and sold 5 मई को खरीदा and sold on 24th of December. Okay, for 6,15,000. Short term STT was paid both at the time of purchase and sale. ठीक है. While collecting information for filing its tax return, Mr. Amit Verma noticed that he had failed to claim a refund of 10,000, representing tax deducted at source by his client, Messrs. Arora and Arora Associates, during the previous year 22-23. 22-23 का TDS credit लेना था, वो रह गया, छूट गया, है ना, वो claim नहीं हुआ. He then approached a tax consultant to file an updated return. Mr. Jagat assured that the entire amount of TDS can be claimed by filing an updated return. ठीक है. Mr. Amit Verma is paying tax as per the default tax regime, मतलब 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स पे हो रहा है. ठीक है. चलो देख लेते हैं अब क्या है. What will be the residential status? Now सबसे पहले तो क्या बोला है आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड रिसाइडिंग इन दुबई. तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का जो फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज, वो देखते हैं अगर, तो वो तो फुलफिल हो नहीं रहा है. 135 डेज ये ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. नाउ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर आपका 182 डेज फुलफिल नहीं होता है, तो आप क्या देखते हो, 60 plus 365, but that is not applicable in case of a person of Indian origin residing outside India. तो इसके ऊपर वो वाला केस नहीं अप्लाई होगा. अब इस पे जो एडिशनल कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि अगर 15 लाख से ऊपर का आपकी इनकम है विच इज अक्रूइंग इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया, and your stay during the relevant previous year is 120 days or more and the previous 4 preceding years is 365 days or more, then you will be again deemed to be a resident. Correct? RNOR. So now in this case उसका 120 डेज तो फुलफिल हो रहा है बट 365 डेज फुलफिल नहीं हो रहा है, therefore he will be considered as a नॉन रेसिडेंट. तो अब नॉन रेसिडेंट है तो उसकी सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, जो कि इंडिया में ही डीम्ड टू अक्रू अराइज इंडिया है, अक्रू अराइज इन इंडिया है. ये जो दुबई की इनकम है भले ही दुबई में टैक्सेबल नहीं है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट. सो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है बिकॉज वो ना ड्रीम रेसिडेंट की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ना वो RNOR वाली कंडीशंस फुलफिल कर रहा है. सो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल. चलो आगे बढ़ते हैं.
What will be the TDS TCS implication on purchase of car by Mr. Amit? तो अब मिस्टर अमित ने कार परचेज करी है, उसके ऊपर टीसीएस होगा बिकॉज उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है. व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमित? नॉट टोटल इनकम में आपको सिर्फ इंडिया की इनकम ऐड करनी है. डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, क्या बोला है यहाँ पर? आपका यहाँ पे कितनी कौन सी इनकम है हम लोग देख लेते हैं. 9 लाख का प्रोफेशनल इनकम है, जिसमें से 2.5 लाख के उसके खर्चे हैं, तो वो आप माइनस कर सकते हो. डिविडेंड 2,15,000 है, और 18 लाख का रेंटल इनकम है, तो रेंटल पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा. तो वो 70%, मतलब टैक्सेबल अमाउंट विल बी 70%. तो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है, मतलब टैक्सेबल इनकम हो जाती है यहाँ तक की 21-25. नाउ आफ्टर दैट उसने शेयर्स भी सेल किए हैं, तो 6,50,000 माइनस 4,25,000 प्लस हमारा ऑलरेडी जो इनकम थी. सो हाँ, इतना ही है, राइट. सो 6,15,000 माइनस 4,25,000 is 1,95,000 plus 21. 23,15,000 will be the total income of Mr. Amit for AY 25-26. अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोगों को लगी होगी कि हम दुबई की इनकम को क्यों टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं. लास्ट वाला जो कंडीशन होता है डीम्ड रेसिडेंट का, कि कोई और जगह पर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि दुबई में he is not considered as a tax liable to tax because of any reason of his domicile or residence. If you will pay attention in that particular section, the condition is कि किसी भी और कंट्री में आपके रेसिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल की वजह से अगर आप टैक्स फ्री हो रहे हो, तो फिर वो इनकम इंडिया में टैक्स करी जा सकती है अंडर अंडर इफ दोज एडिशनल कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट जस्ट आई वांट टू हाईलाइट कि वो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में अगर आया होगा, तो यहाँ पर वैसा कहीं पर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है. इसीलिए दुबई की इनकम हम यहाँ पर, मतलब वो पॉइंट में जाकर के हम नहीं देख रहे हैं, और दुबई की इनकम हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना. सो ही इज ए नॉन रेसिडेंट, एंड देयरफॉर इधर डीम्ड रेसिडेंट वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है. तो नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही टैक्सेबल होगी. नाउ कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर टीडीएस टीसीएस इफ एनी कलेक्टेड. तो टैक्स लायबिलिटी जो है इसकी 2315, इसमें से शेयर सेल वाली जो इनकम है that will be taxable at the rate of 111A. Now, as the transfer is after 23rd of July 2024, 111A मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड जो है वो आपका 20% से टैक्सेबल होगा. वो रेट 15 से 20 हो गई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर 1,90,000 पे 20% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा. देन डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड इनकम अर्न हुई है बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट, rate will be applicable as per 115A, that is 20%, है ना. 115A पे आप 20% पे डिविडेंड पे टैक्स लगाओगे, एंड बैलेंस पे स्लैब लगेगा ना. स्लैब में उन्होंने बोला है 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया है, सॉरी ऑप्ट आउट नहीं किया है, मतलब 115 बीएसी के स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है. तो हम निकाल लेते हैं. 23,15,000 में से मैंने 1,90,000 माइनस कर दिया, 2,15,000 माइनस कर दिया, 19,10,000 में से फर्स्ट 3 लाख पे नो टैक्स, देन 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20, एंड मोर देन 15 लाख इट इज 30%. तो ये आपके स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स आ जाता है. टोटल टैक्स में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेस ऐड करना पड़ेगा, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है. तो मैंने प्लस कर दिया सरचार्ज 357760. अब क्वेश्चन में बोला था इग्नोर टीडीएस टीसीएस, तो अभी हम लोगों ने नेट पेएबल नहीं निकाला है, हमने ग्रॉस निकाला है. टीडीएस टीसीएस का कंसिडरेशन अभी इसमें नहीं लिया है ना. आगे चलते हैं. कैन मिस्टर अमित फाइल एन अपडेटेड रिटर्न to claim refund? No updated return cannot be furnished for the purpose of claiming refund. ये तो सिंपल सी बात है. टाइम लिमिट पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन हमारे 139(8)A का पहला जो कंडीशन हो, मतलब वन ऑफ द मेजर कंडीशंस इज दैट यू कैन नॉट क्लेम अ रिफंड बाय फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न. सो यहाँ पर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते विद रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिट, है ना. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस सिनेरियो. अब आपको कुछ इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं 3-4, उनको देख लेते हैं. ऑन 2nd of February 2025, Global Private Limited buys product from Fintech Solutions
यूनिट लोकेटेड इन द आईएफएससी वर्थ 63। तो किसने किससे परचेज किया है, देखो आईएफएससी का क्वेश्चन है, मैंने लास्ट आरटीपी में भी बताया था, लास्ट आरटीपी ऑल्सो यू कैन रेफर वंस, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और उसमें भी आईएफएससी के ऊपर काफी स्ट्रेस किया हुआ था, मैंने तभी भी बोला ही था ये चीज। आईएफएससी इज समथिंग विच इज अ बूमिंग मार्केट, तो इस पे क्वेश्चंस आने बढ़ेंगे अच्छे से आईएफएससी से रिलेटेड, और सर्कुलर्स नोटिफिकेशन वगैरह भी है, हम लोगों ने स्टैट्यूटरी अपडेट में भी बात करी, सो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। आईएफएससी यूनिट से इसने बाय किया है ना, इसने बाय किया है गुड्स वर्थ 63 लाख, तो इसके ऊपर 194 क्यू की इम्प्लीकेशन चेक करनी पड़ेगी और इस पे 206 सी 1H की इम्प्लीकेशन चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आईएफएससी यूनिट जो है वो सेलर है। अब क्या बोला है, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में। बायर टर्नओवर ऑफ फिनटेक सॉल्यूशंस वाज 11.5 एंड टर्नओवर ऑफ ग्लोबल वाज 15.5 करोड़। तो 194 क्यू भी एप्लीकेबल है और 206C1, मतलब कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। सो देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन टू आईएफएससी इफ दे गिव अ डिक्लेरेशन कि ठीक है हम अभी 80 LA में ऑप्ट कर रहे हैं, हमारा 80 LA में इनकम एग्जेम्प्ट है, तो हमारा टीडीएस मत डिडक्ट करो, सब्जेक्ट टू दैट डिक्लेरेशन बीइंग गिवन बाय द एफएससी यूनिट, द एंटिटी परचेजिंग द गुड्स इज नॉट लायबल टू डिडक्ट अंडर 194 क्यू, है ना। तो यहाँ पर आपके ऊपर 194 क्यू नहीं अप्लीकेबल होगा, लेकिन सामने वाला मतलब जो सेलर है उसके ऊपर 194 206 1H will be applicable. So that is to be kept in mind that the declaration is to be given. Now, ABC Limited was merged with XYZ Limited pursuant to an order of High Court. XYZ had already filed its return of income before the due date. On the date of High Court order, assessment was pending under 143(3). Which of the following are the compliance obligations for the successor entity? And what is the fate of the pending assessment pursuant to the merger? ठीक है, तो सबसे पहले तो असेसिंग ऑफिसर विल प्रोसीड टू कंप्लीट द असेसमेंट इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड द मॉडिफाइड रिटर्न। मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इस केस में, करेक्ट। सो जो असेसिंग ऑफिसर है वो कंप्लीट करेगा असेसमेंट, लेकिन वो उस मर्जर ऑर्डर को कंसिडरेशन में लेगा और उस मर्जर ऑर्डर के मतलब साथ जो आपका मॉडिफाइड रिटर्न फाइल हुआ है उसको कंसिडर करके असेसमेंट क्लोज करेगा। और मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फाइल करना होता है, तो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अगस्त, मतलब जब आपका ऑर्डर आया है उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो सही है। पेंडिंग असेसमेंट विल अबेट नहीं, ये नहीं होगा। एंड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 10th अगस्त नहीं, एंड ऑफ अगस्त, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे सही है ना। चलो, सो 13 आई गेस, ओके दो ही है 13 से, अब हमारा subjective questions है, ठीक है, that we will be discussing in a separate part. So these are the objective questions that have been given in your revision test paper for the CA final examination. Solve these properly, go through these, read the question in detail. Specifically, it is very very important, I always tell कि क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू नो, पढ़ते पढ़ते दिमाग में प्रोविजंस हम लोगों को थोड़ा थोड़ा घुमाने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि हम लोग लिंक कर पाए कि अच्छा कहाँ जा रहा है केस स्टडी, क्वेश्चन क्या आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन solve the questions appropriately. So solve these questions. Let me know if you have any issues, and if you want any other topic to be discussed as a revisionary lecture or something like that, feel free to reach out. All the very best for your examinations.